السلام علیکم ناظرین، پس پردہ کے پروگرام میں محمد اظہر صدیق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے موضوعات میں ایران، ایک بڑی خوشخبری اور حاکم کی بڑی غلامی۔ سر، سب سے پہلے ایران کی جنگ کا اب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ناظرین۔ 2 مارچ ہو گئی اور کل 3 مارچ ہو جائے گی، اور چیزیں اب آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں۔ اور میں جو بات ہمیشہ سے کرتا ہوں، میں نے اپریل میں کہا تھا ستمبر ہوگا، اور جو ہے اب یہ جو جنگ اب شروع ہوئی ہے، امریکہ نے جنگ یہ شروع تو کر لی ہے، یا امریکہ یا اسرائیل نے، اب یہ شاید ان کے ہاتھوں میں ذرا بڑے مسائل رہیں گے، بڑی مشکلیں رہیں گی۔ اور کئی چیزیں ہم آپ دیکھتے رہے ہیں، امریکہ کے طیارے گرنا، کہ قطر کے غلط فہمی کے بنیاد پر آ جانا، تو وہ بندہ چھپاتا بھی تو ہے نا کئی چیزوں کو، لیکن ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کھڑا ہے۔ ایرانی قوم جو ہے بڑی جنگجو قوم ثابت ہوئی ہے۔ پورے مسلم امت تو نہیں ہے، ہر کوئی طاقتور آدمی ہے تو بیٹھ جائیں۔ اگر یہی ایک پرنسپل طے کرنا ہوتا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت کیوں دی؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر یہی پرنسپل اگر آپ کو طے کرنا ہوتا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی تھی نا ساری، لیکن نہیں۔ نظام نظام سمجھنا ہے کہ یہ نظام کیا ہے۔ اس نظام دیکھیں، یاد رکھیے گا، دین حسینیت ہے، دین یزیدیت نہیں ہے۔ یزیدیت تو طاقتور آدمیوں کی تھی نا، اور آج بھی یزیدیت طاقتور لوگوں کی ہے۔ تو اگر یہ سارا نظام ہی ہے تو پھر جنگیں کس لیے ہوئی؟ جنگیں کیا کوئی طاقتور آدمی یا کمزور آدمی طاقتور کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا رہا ہے؟ یعنی یہ تاریخ ہے، تاریخ گواہ ہے، اتنی جنگیں ہوئی، آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے لڑے، خندقیں کھودی، ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ سارا ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں۔ اگر تو طاقتور تھے پھر میدان میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ میدان میں تو اترنا ہے۔ جو تکلیف دہ بات ہے، جو بار بار کہہ رہا ہوں، کہ کہیں پاکستان کی باری نہ ہو سارے پروسیس کے حوالے سے، اور پاکستان جو کہ جس جگہ موجود ہے اس چیز کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو چائنا تو کبھی بھی رسک نہیں لینے دے گا، یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ اور رشیا کے حوالے سے بھی میں بار بار کہتا ہوں، رشیا کے حوالے سے بہت سے متضاد رائے موجود ہیں، لیکن پاکستان نے تو رشیا کے ساتھ اچھا نہیں کیا نا جی۔ پاکستان نے امریکہ کی جنگ کے اندر رشیا کو جو تباہی و بربادی دی، رشیا کو تو یاد ہے، اور وہ یاد رہنا بھی چاہیے انہیں اپنے طور کے اوپر، لیکن وہ آج بھی رشیا سمجھتا ہے کہ اصل مقابلہ جو ہے اس کا کچھ اور لوگوں سے ہے۔ اب یہاں جو آپ بات اکثر میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جو ہے نا، علی لاریجانی، کہ ان کا ملک امریکہ کے برعکس ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا ایکس سائٹ پہ پتہ نہیں سچائی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک پیغام لکھا کہ گزشتہ 300 سالوں میں ایران نے کوئی جنگ شروع نہیں کی، اور ہماری بہادر مسلح افواج نے اپنے دفاع کے علاوہ کسی عملے میں حصہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا، قیمت سے قطع نظر ہم اپنا 6,000 سالہ پرانے تہذیب کا بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے، اور ہم دشمن کو ان کے غلط حساب کتاب پر پچھتاوا دلائیں گے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے، امریکی وزیر دفاع نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں لامتناعی جنگ کا باعث نہیں بنیں گی، اور اس کا مقصد ملک کے میزائلوں، بحریہ اور دیگر سیکیورٹی کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا ہے۔ یعنی اگر یہی بات ہے، اگر اسرائیل نے اتنی طاقت اپنائی ہوئی ہے تو وہ بھی تو ختم کرا لیں۔ اگر آپ خطے میں توازن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو پھر توازن کا کلیہ آئے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں دو سوچیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ ایک سوچ تو بڑی واضح طور پر ڈیولپ یہ ہو رہی ہے کہ جناب طاقتور آدمی ہے، وہ طاقتور چپ کر کے سر بیٹھ کے اپنا جو کہتا ہے وہ کری جائیں۔ تو اگر یہی کرنا تھا تو پھر دین اسلام کی، مغل ڈائنسٹی کی اتنی جنگیں ہوئی، پھر ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو اگر یہی بات ہوتی، یہی ہونا ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بات کسی طرح سے بھی قابل قبول ہوگی اور جائے گا۔ لیکن بہرحال ایک نظریہ فلوٹ کر رہا ہے، دوسرا نقطہ نظر یہ فلوٹ کر رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کو جو ہے نا باقی مسلم ممالک کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی۔ اب اس کی کلیئرٹی بڑی واضح ہے، وہ کہہ رہے ہیں مسلمان ممالک کے ساتھ نہیں لڑی، جس جگہ وہ استعمال ہوئے تو ان جگہوں پر
उस इलाके में उन्होंने ये कहना ईरान का है। और अब ये फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन आप तक जंग जो कुछ हो रही है उसकी असल हालात भी सच तो नहीं आ रहे ना। आपका जो मीडिया है वो कॉम्प्रोमाइज है, और सोशल मीडिया भी चंद चीजें तो दे जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया भी वही बताएगा ना जो उसके पास ग्राउंड रियलिटीज पे होगी। और वहां ईरान की तरफ से है कि ईरान की तरफ से या और कोई न्यूज एजेंसीज हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज, वो इन चीजों को बताएंगी तो आप लोगों तक पता चलेगा जी। सर एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि एक वक्त था कि जब खान साहब का जिक्र होता था तो जज उठकर चैम्बर में चले जाते थे, और अब केसेस फिक्स होना शुरू हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ये कोई अनोखी बात नहीं है। पहले मैं एक बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो रमजान में महंगाई हो रही है, ये सारा, तो गोश्त क्या भाव चला गया है या बाकी चीजें कहाँ पहुंच गई हैं, कम लोग ही खाते हैं, लेकिन जाके चेक तो करें 3200 रुपए किलो तक गालबन चला गया हुआ है। बड़ा गोश्त कहाँ चला गया है, मुर्गी के गोश्त की क्या पोजीशन है, रोजमर्रा अशिया के क्या हालात और वाकयात हैं, ये जरा जरूरी है समझने के लिए। ये कल है। दूसरा जो आम मामला है वो बुनियादी तौर के ऊपर पता नहीं उसकी बारी आती है कि नहीं आती है। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब के पास मामला है, और मामला बड़ा अहम है वो वाला। वो खास तौर पर जो गटर के ढकनों वाला मामला है, उसके हवाले से केस की कि अभी तक क्या किया है, क्या रिकॉर्ड के ऊपर चीजें आई हैं। अब ये चीजें सारी मैं तो उठाता रहता हूँ, उसकी समाअत होनी है। तो हमारे यहाँ बहुत से अहम मामला जो हैं, यानी फिक्सेशन के लिए अब ऐसे जजेस के पास केसेस जा रहे हैं जो ज्यादातर फौजदारी सुनते हैं। फिर फौजदारी केसेस में तो आप, यानी ये वाले केसेस जितने भी हैं ये उन जजेस के पास जाने ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी एक आध केस और है जो जो खास तौर पर जो है वो फौजदारी जजेस के पास ही जाना है, ये शायद वहीं लगना है। चलें, जितना भी जो कुछ भी है, हमारा तो काम है कि हम अपने हिस्से की शमع जलाते रहें, आवाज उठाते रहें, और वो हम उठाते रहेंगे। अब दूसरी जो बात है, मैंने आपको पहले कह दिया था, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे, और इमरान खान साहब की अब जितना मर्जी आपने अंदर रखना तो बड़ा नामुमकिन सी बात है, मुश्किल सा काम है। नामुमकिन भी है और मुश्किल भी है। जो खास बात है, इमरान खान साहब के जेल के हवाले से जो मामला है, उसके कॉन्टेक्स्ट से बड़ी अहम बात है ये वाली कि अब आगे क्या करना है। अब यहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के में केस दरखास्त जो है ना वो समाअत के लिए मुकर्रर तो हुई है, ठीक है ना जी। और वो बहुत ही अहम दरखास्त है, वो इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से बात है जी। ठीक है, अशफा अस्पताल में जो है ना वो मुंतकिल करने के जाती मुआलजीन और फैमिली की मौजूदगी में उस दरखास्त पर जो है ना एतराज लगा दिया जस्टिस अरबाब मोहम्मद और ताहिर साहब और जस्टिस खादम हुसैन सोबरो। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वो तो आप देखते रहे हैं, उनके हवाले से मैंने तो कोई ऐसी बात करनी नहीं है, ठीक है ना जी। और और उसके इसकी अब एतराज के तौर पर लगाया है। अब एतराज में देखिए वजह ये है कि जब अपील लगी हुई है तो वो अदालत की कस्टडी में है ना इमरान खान साहब, वो अदालत तो है। अब चूंकि अपील समाअत है तो अदालत ऑर्डर जारी कर सकती है, लेकिन वो एतराज लगाया है। अब इसमें एतराज दूर करके केस की समाअत होगी, और अब बहुत हो गया है, काफी हो गया है। हमारी अदालतें जिस तरह से मामला को लेकर चल रही हैं वो तो एक तकलीफ बात है। अब जो भी हो, यानी ये वसूली तौर के ऊपर तो है, ये वाली दरखास्त जो है ये ना सिर्फ मुकर्रर होनी चाहिए, मुकर्रर होकर बाकायदा इमरान खान साहब को शिफ्ट भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आपको याद है अपना केपीके का मामला था, दिल के मर्ज के लिए बाकायदा जो अस्पताल है दिल का, वहां पर शिफ्ट करने का कहा था। अगर आप शिफ्ट कर सकें, ठीक है ना जी, आप अगर शिफ्ट कर सकें, लेकिन चले कोई नहीं है, कोशिशें जारी हैं, और अदालत का इख्तियार मौजूद है। बेंच मुतवाजन बेंच है, मैं ये बेंच कहूँ, वरना तो आपको पता है बेंच एक ही तर्ज का जो बेंच होते हैं वो हम तो हमेशा कहते हैं आए आईनी बेंच बनाए, केसेस को लुकाएं आईनी बेंचों के सामने। मैं आवाज उठाता रहता हूँ, मेरा तो काम ही आवाज उठाते रहना है, और बार बार आवाज उठाता रहूंगा मैं, तो ऐसे नहीं बैठेंगे। लेकिन ये वाला जो मामला है, ये कल एतराज दूर होके, मैं समझता हूँ अदालत का इख्तियार है, एतराज दूर करके आप जवाब मंगवाएं। और ज्यादा लंबी डेट रखने की जरूरत ही नहीं है, 2 दिन की डेट डालें, जुमेरात के लिए डेट रखें, और जुमेरात को आप इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करिए। ये मैं कानूनी तौर पर समझता हूँ, और बहरहाल ये अदालत की स्वाबदीद है, अदालत इसको किस तरह लेती है, अदालत इसको किस तरह सेटल करती है, ये सारा कुछ अदालत के ऊपर है। अदालत इस मामले को किस तहज से लेके जाना चाहती है, किस तरह खत्म करना चाहती है, ये सब उसकी स्वाबदीद है जी। सर लाहौर हाई कोर्ट में आज एक मतलब अलमनाक वाकया हुआ है, तो अब वकील साहब का क्या मुस्तकबिल होना चाहिए?
देखिए, ये तो मैं पहले बता दूं, हमारी बार की, लाहौर हाई कोर्ट बार की ट्रेडिशन बहुत पुरानी है। और इलेक्शन जो है, वो मुखालिफ ग्रुप जो वो हार गया था, इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो हार गया था। जो मर्जी आप कह रहे हैं जी, बायोमेट्रिक का फोरेंसिक कराना है, वो भैया आप इलेक्शन हारे हुए थे। दोपहर के टाइम पे मैंने सारा देखा, जितनी लीडरशिप थी, मुलाकात हुई, मैंने उसको कह दिया था, मैं कही ये इलेक्शन तो आप हार गए हुए हैं जी। मैंने बहुत से जो करीबी दोस्त है, देखिए राजा आमिर हमारा दोस्त है, अच्छे दोस्त है, लेकिन बात जो है कि आप उन लोग, आप हमेशा बाहर जो है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट चलती है, वो जो बंदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हो उसको वोट नहीं करती है। अब वो ये कहना कि एस्टेब्लिश, भाई आप जिस ग्रुप के साथ खड़े हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रही, वो हुकूमत वक्त का साथ दे रही है, यानी वो इंडिपेंडेंट होकर नहीं चल रही है। ठीक है ना जी। अब उसमें आके बाहर जो है ना, बाबर मुर्तजा साहब आकर सदर में काबीना के कमरे में आकर बैठ गए थे। फिर वो एक ऐसे ही सो कॉल्ड इजलास बुलाया गया, वहाँ हुल्लड़बाजी हुई, बड़ी तकलीफ हुई। बहुत सीनियर वकीलों ने बड़ा इसका बुरा बनाया है कि ये तरीका ठीक नहीं है कि जिस तरीके से आप लेकर चले। और वहाँ गालम गलोच भी नहीं होनी चाहिए थी, जो सच्ची बात है, गालम गलोच हुई। ठीक है ना। और उस पे फिर लड़ाई भी हुई है, मार कुटाई भी हुई है। ये खातून वकील को जिस तरह भी है, अगर उसने कोई ऐसी बात कर भी दी है तो उसका, उसको मारना नहीं चाहिए था, जितना मर्जी आप कहें, उसको मारना नहीं चाहिए था। उसको मारा गया और तशद्दुद हुआ। वकला भी आपस में दस्तो गिरबान हुए, वो अपनी एक जगह मौजूद है। लेकिन अगर किसी ने कोई गलती कर भी दी थी तो चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्ची है, जैसे भी है, हमें जात या जात की तरफ नहीं आना चाहिए। उनके जो अल्फाज हैं, मैं अल्फाज भी मुनासिब नहीं समझता कि उस बच्ची ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो मुनासिब नहीं है। ठीक है। यानी आप जो जोर जबरदस्ती से फॉर्म 45 और 47 का नफाज हाई कोर्ट में भी करना चाहते हैं, देखें, पहले हमारी यूनियन काउंसिल्स हाथों से गई, फिर हमारी स्टूडेंट यूनियंस हमारे हाथों से चली गई, यानी जहां ग्रोथ होनी थी वो सारी रह गई। उसके बाद बार एसोसिएशन है जो हर दौर में खड़ी रहती है, चाहे डिक्टेटर का दौर हो या इवन अदरवाइज जैसा भी दौर हो, वहाँ खड़ी रहती हैं। अब वो भी छीनना चाह रहे हैं कि यहाँ बोलने वाला कोई ना हो। जनाब, अगर ये हाल करना है तो फिर ये सियासी जमातों को गौर करना चाहिए। अब ये वो सियासी जमातें जो हुकूमत वक्त के साथ हैं, किसी ने मुजाहरा करने की कोशिश की है फलस्तीन वाले मामले के अंदर, और ये खास तौर पर ईरान वाले मामले के अंदर, ये बड़ी ज्यादती हुई है बड़े पैमाने पर। देखिए, पुरअमन एहतजाज का हारे का हक है, तोड़ फोड़ के तो मैं भी हक में नहीं हूँ, लेकिन आपने वो भी नहीं होने दिया। वहां कितना जुल्म और ज्यादती हुई, सारा कुछ आपके सामने है, कितनी शहादतें हुई हैं, ये भी सारा कुछ सामने। जो जो हाथ में, कानून में हाथ ले, मैं कभी फेवर नहीं करता, लेकिन जहां तक एहतजाज का हक है ना, वो एहतजाज का हक हर हालत में मिलना चाहिए। बाज लोगों का तकाजा है कि उस वकील साहब का तो लाइसेंस मुअत्तल कर देना चाहिए, तो आया ये होना चाहिए या नहीं? देखिए देखिए, औरत ने जो हाथ उठाया है तो वो तो ज्यादती ही है। इस पे बार काउंसिल का इख्तियार मौजूद है। बार काउंसिल को आज खुद नोटिस लेकर इस सारे मामले को देखती है, क्या फैसला करती है। ये देखना ये है कि वो बार हमारी क्या फैसले करती है, बार काउंसिल की बात है। असूली तौर के ऊपर जो है ना, ये जगह आई हुई है, बड़ी दिक्कत हुई है, तकलीफ हुई है, सुन के हमें भी तकलीफ हुई है, सीनियर वकला को भी तकलीफ हुई है। कसूर उनका है जिन्होंने सिलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाया है, और माफी भी उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने सिलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाया है। लेकिन अब ये कर दी है, लाइसेंस सस्पेंड, बिल्कुल। बार काउंसिल्स को अपने तय सारे मामले को टेकअप करना चाहिए। सर, अगला मामला जंग के हवाले से भी है। तो जो गुलाम हैं वो अभी भी बादशाह के पैरों में बैठे हुए हैं, वो अपनी बात पर कायम है। देखिए, वो बात बड़ी वाज़ेह है, अब लोग तो सवाल करते हैं ना, और यही फर्क है। अब देखिए, मैं पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की बड़ी तारीफ करता होता हूँ। एक जमहूरी जमात है, ग्राउंड रियलिटीज पे है, डिक्टेटरों ने पैदा नहीं किया उस जमात को। वो आज ठीक है, आजकल उनका जो रवैया है वो अपनी जगह पर मौजूद है। इसलिए देखिए, नोबेल इनाम के लिए, ट्रम्प को अवार्ड देने के लिए सहाफी ने जब सवाल किया, ठीक है ना जी, बिलावल भुट्टो साहब से, ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब साइड पे हो गए, सही है ना जी। जब मरियम सफदर से पूछा गया, ठीक है ना जी, तो उन्होंने फैसले को अच्छा करार दिया। यानी आप यहीं से अंदाजा लगा लें आप कहाँ खड़े हैं यार। आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दीन हमारा जो कहता है कि दीन क्या कहता है, बुराई को हाथ से रोको, फिर है जुबान से, तीसरा है दिल से बुरा जानो। यानी आप एक उस बुराई को, आप कहें जनाब के किस बात का नोबल यार, क्या कुछ कर रहा है वो, एग्रेशन कर रहा है, किस बात का पीस की बात कर रहे हैं। किस वक्त खुल के सारी बातें आ जाएंगी, वो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको छुपने के लिए।
سر ہمارا آخری موضوع یہ ہے ٹی ایل پے کے حوالے سے ایک مطلب مولانا صاحب نے قاضی فائز صاحب پر مطلب فتویٰ دے دیا تھا، تو اب اس کے حوالے سے ایک اور پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ یہ بڑا نازک موقع ہے جی۔ ویسے تو ہمارے یہاں سے مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے کارنر ہی ہو گئی ہیں۔ مذہبی جماعتوں کی حیثیت کیا رہے گی، آپ صرف یہیں سے اندازہ لگا لیں۔ ایران کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور مذہبی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں؟ ماں سوائے چند مذہبی جماعتوں کے علاوہ جو مین سٹریم کی مذہبی جماعتیں ہیں وہ کہاں کھڑی ہے؟ تو اس لیے انہوں علماء صاحب کو جو ہونی تھی وہ تحریک لبیک پاکستان کے جو ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مولانا طاہر سیفی کو آپ اندازہ لگائیں کتنی سزا دی ہے، 32 سال کی۔ یعنی قاضی جو ہے اس نظام کی تباہی و بربادی میں برابر کا حصہ دار ہے، تو اس کو پروٹیکٹ تو کرنا ہے نا، تو وہاں رکھتے ہوئے 32، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرے جو ہیں پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب، اور ان کو قتل پر اکسانے کے مقدمہ میں 10 سال قید کی سزا دی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ مقدمہ جو ہے نا لاہور کے تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں تھا۔ تو یہ ہماری دیکھیں نا وہ آخر آخر جو ایسٹس ہوتے ہیں ان ایسٹس کو بچانا تو ہوتا ہے نا جی۔ تو یہاں اور کیا میں کہہ سکتا ہوں، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، بہرحال میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ یہ عدالت کا فیصلہ آج بھی اپیل میں جائے گا تو یہ کل عدم ہو جائے گا، لیکن وقتی طور پر ریلیف ہے کہ اس تھکے ہوئے، ہارے ہوئے اس کرپٹ نظام کو سپورٹ دینے کے لیے اس طرح کے فیصلے جو ہے نا وہ تاریخ میں کبھی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھے جاتے، اور انسان اور پوری قوم جو ہے نا ایسے ایسے فیصلے جات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتی۔ کچھ ماہ پہلے ظہیر الحسن شاہ صاحب کو سزا سنائی گئی، اور اب ایک مولانا طاہر صافی کو سزا سنا دی گئی ہے۔ ہمارے اس پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، ہمارا پیغام اپنے دوستوں رشتہ داروں تک شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔